Hello, my dear students. Success is not the key to the happiness, but happiness is the key to the success. If you love what you are doing, then definitely one day you will be successful. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज प्राइमरी डेटा टाइप्स। In previous discussion, we have seen that C and C++ programming goes with two types of the data type. One comes as a primary data type, जिसका genuine need है, language को बनने के लिए वो चाहिए ही. And some additional entities are there, some additional capacities are there with respect to another type of data known as secondary data type. तो ये चार्ट हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं. Data types are divided into two zones. One is primary, the other one is secondary. लैंग्वेज को बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? सो प्राइमरी में वी नीड कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट्स, एंड सेकेंडरी में देयर आर मेनी डेटा टाइप्स दैट कम्स फर्स्ट पॉइंटर, अरेज, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स, इनम्स, यूनियंस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग लेटर स्टेज ऑफ दिस कोर्स हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट आज का कंप्लीट फोकस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा टाइप एंड देयर इंटरनल डिटेलिंग्स आर। ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रोग्रामिंग यू आर गोइंग टू बी इन नीड ऑफ सपोर्ट ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप। जब हम लोग सेकेंडरी डेटा टाइप भी स्टडी करेंगे तो सेकेंडरी डेटा टाइप्स आर फॉर्म्ड with the help of primary data types also. So in that case also we are in need of primary data types. So let's move into the further detailings about primary data types. So as we discussed that every entity we are going to study with the help of image so that we can keep it with us for longer period of time, right? So हम लोग अभी प्राइमरी डेटा टाइप का एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हर चीज जो प्राइमरी डेटा टाइप से जुड़ी हुई है दैट विल बी प्रेजेंट इनटू दैट चार्ट। एक बार आपने वो चार्ट देख लिया, वो इमेज आपके ब्रेन में फिक्स हो गया, then you can tackle any question in your viva, any question in your interview for C and C++. So let's begin with the discussion about primary data types. Primary data types. According to previous discussion, we have seen that there are three major types, and those three major types are: first one is character, next one is integer, and next one is float. Right. Now let us see like what comes in character, what is its formats, what comes in integer, in what way it is going to get stored in hardware, what is there in the float, in what way it is going to be represented in computer systems, right? So character के अंदर we have one subtype and which is indicated by the keyword as char. Integer के अंदर we have three subtypes and those are indicated by the corresponding keyword as short, next one is int, and next one is long. And float के अंदर we have again three subtypes and those are indicated by the keyword as float, next one is double, and next one is long double, right? So in total जब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं तो प्राइमरी डेटा टाइप्स में अपने पास 7 सब टाइप्स आते हैं। कैरेक्टर का 1, इंटीजर के 3 एज वेल एज फ्लोट के 3। सो कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, राइट? अभी इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे। कैरेक्टर के केस में क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोट, एंड उसके बारे में तो बहुत इंटरनल डिटेलिंग्स में चलने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हार्डवेयर पे ये एंटिटी स्टोर होंगे तो वो हार्डवेयर पे किस तरह से स्टोर होंगे इतना अंदर डिटेलिंग तक हम लोग जाने वाले, राइट? विच इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली फॉर दिस प्रोग्रामिंग बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहां पे ये डेटा टाइप्स आएंगे। सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट char as a data type, character as a data type,
then data is represented with the values and those characters are known as what? ASCII character. ASCII, already we discussed this during the character set, but let me remind you, ASCII is American Standard Code for Information Interchange. कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर के लिए एक ASCII वैल्यू इज डेडिकेटेड. फॉर एग्जांपल, कैपिटल A is having the ASCII value of 65. हाँ, लोअर केस a is having the ASCII value of 97. जीरो की is having the ASCII value of 48. आगे जाके हम लोग लूप्स जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे कोड करेंगे जहां पे पूरे के पूरे ASCII वैल्यूज को कंसोल के ऊपर प्रिंट करेंगे, तब जाके एक बहुत जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग आएगा. पर अभी के लिए let me tell you that each and every character on the keyboard is represented with what values? ASCII value, and that's why sometimes the keyboard is also known as ASCII keyboard. So आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेलिंग. So there are total 256 ASCII. कितने ASCII वैल्यूज है? 256 ASCII. एंड सारे के सारे ये जो ASCII वैल्यूज है उनके रिलेटेड कीज है, those are represented with the help of zeros and ones, that is binary number system. तो ये रिप्रेजेंटेशन स्कीम कैसा है, तो उसको कैसे हम लोग देखने वाले हैं, प्लीज ऑब्जर्व. इफ आई हैव टू थिंग्स टू रिप्रेजेंट, आई एम इन नीड ऑफ वन बिट. लेट मी एक्सप्लेन दिस. मेरे पास अगर दो चीजें रिप्रेजेंटेशन के लिए है तो मैं एक बिट के साथ उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं. कैसे? इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 1. If I have 4 things to represent, I need 2 bits. 0 0 0 1 1 0 1 1. बहुत simple है. So if I have 2 bits, I can represent 4 things. If I have 3 bits, I can represent 8 things. If I have 4 things, I can represent 16 things, right? और उल्टा भी सोच सकते हैं. अगर 16 things to represent, how many bits we do need? 4 bits we do need, right? So अपने पास अगर 5 bits है तो we can represent 32 things. अपने पास 6 बिट्स है सो 64 थिंग्स. अपने पास 7 बिट्स है तो 128 डिफरेंट थिंग्स. एंड अपने पास 8 बिट्स है तो 256 डिफरेंट एंटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड, राइट? तो अभी मैं एक इक्वेशन की तरफ आने वाला हूं. अगर मेरे पास 256 डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन है, मुझे 256 डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ मेनी बिट्स वी नीड अकॉर्डिंग टू दिस? 8 बिट्स. So यहाँ पे one character is in need of representation with the help of how many bits? 8 bits. And we know that 8 bit के ग्रुप को हम लोग करते हैं 1 byte. And इस वजह से one character is in need of 1 byte memory storage. 1 byte memory storage. ये है actual equations, right? So let me summarize. Character data type is represented with the keyword as char. All the characters are represented with ASCII values. There are total 256 ASCII values. If we want to represent 256 values, we are in need of 8 bits. So one character is in need of 8 bits. 8 bits का ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं 1 byte. So in memory कैरेक्टर को अगर स्टोर करना है तो वी आर इन नीड ऑफ 1 बाइट. ये तो अभी थ्योरेटिकली बताया, इसको प्रूफ के साथ हम लोग देखने ही वाले हैं. बट थ्योरेटिकली आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द कैरेक्टर डेटा टाइप, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड इनटू द डिस्कशन अबाउट इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे, फ्लोट कैसे रिप्रेजेंट होंगे, उसके बारे में, राइट? लेट अस नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन. तो जैसे इंटीजर के सब टाइप्स आ रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, इंट आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, तो उसके लिए भी मेमोरी में कुछ जगह चाहिए, राइट? सो जब हम लोग टर्बो सी के अंदर काम करेंगे, सो शॉर्ट इज इन नीड ऑफ 2 बाइट्स, इंटीजर इज इन नीड ऑफ 2 बाइट्स एंड लॉन्ग इज इन नीड ऑफ 4 बाइट्स. बट जब आप VS कोड में इसी कोड को रन करोगे या उबंटू सिस्टम पे इसी कोड को रन करोगे, एज C and C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, ये जो इंटीजर का साइज है वो आपको थोड़ा अलग मिल सकता है, राइट? सो उस केस में आप यहाँ पे 4 बाइट भी देख सकते हो अगर आप उसको VS कोड के अंदर रन करोगे. मैं आपको दोनों भी सिस्टम के अंदर इसको रन करके दिखाने वाला हूं. एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो व्हाट द करस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस, राइट? बट इंटीजर के अंदर शॉर्ट टेक्स्ट 2 बाइट्स,
इंटीजर टेक्स अभी के लिए 2 बाइट्स एंड लॉन्ग टेक्स व्हाट 4 बाइट्स। अभी हार्डवेयर में जब इंटीजर रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर सिस्टम में तो कैसे होगा? सो उस केस में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट इज यूज्ड, राइट। सारे के सारे entities are represented in zeros and ones, we know, because the computer system is a binary machine, right? So उस केस में जो लेफ्ट मोस्ट बिट रहेगा, लेफ्ट मोस्ट बिट, राइट, उसको हम लोग कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेफ्ट मोस्ट बिट को क्या कहेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। राइट मोस्ट जो बिट रहेगा उसको कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB एंड MSB। अभी इसमें डू यू एग्री दैट इंटीजर का जब बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग इंटीजर है। वाई दे आर डिफरेंट? बिकॉज ऑफ देयर साइंस। सो साइन का भी केयर इसमें होना चाहिए, इसीलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट विल इंडिकेट द साइन ऑफ द नंबर एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स विल इंडिकेट मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम। MSB एक बिट जो साइन को इंडिकेट करता है एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर इंडिकेटिंग व्हाट? मैग्नीट्यूड। सो अगर ये साइन बिट 0 है तो नंबर इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, and if this sign bit is 1 the number is treated as negative. So if this sign bit is 0 number is positive, if it is 1 number is negative. And ये जो सिस्टम है जिसके थ्रू ये integer values are getting stored in computer system, this system is known as 2's complement number system. 2's complement number system. So how the integers are getting stored in the computer system? They are using 2's complement number representation system, जहां पे MSB is representing sign of the number. If it is 0 number is positive, if it is 1 number is negative, and rest of the bits indicates the magnitude of the number, right? Magnitude is 12, इस केस में sign is negative. Magnitude is 12, इस केस में sign is positive, like that, right? Okay, I hope integer का discussion is also clear. So how the characters are represented? Characters are represented with ASCII values. How integers are represented? They are represented with 2's complement number representation system, right? अभी बात करते हैं और एक interesting type का, that is float, and float is having the subtypes as, these are the subtypes, that is float, double as well as long double. अभी float value जब मशीन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट टू बी डिस्कसेस। आई होप कि यू मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ थिंग। 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷। ऐसे नंबर्स देखे हैं क्या आपने? डेफिनेटली यस। फिजिक्स का अगर स्टडी किया होगा तो ऐसे नंबर देखे होंगे, राइट। यहाँ पे इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? इस चीज को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, राइट। एंड दिस इज द नंबर एंड दिस इज एन एक्सपोनेंट। अभी यहाँ पे दो साइंस इन्वॉल्व है, वन इज द साइन ऑफ द नंबर एंड अदर वन इज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट। तो उस केस में जब भी फ्लोट नंबर रिप्रेजेंट करने हो तो हम लोगों को नंबर का भी साइन का केयर करना पड़ेगा एज वेल एज एक्सपोनेंट के साइन का भी केयर करना पड़ेगा। एंड इसलिए फ्लोट को स्टोर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया एंड सारे के सारे डिजिटल सिस्टम्स में जब भी फ्लोट नंबर स्टोर होंगे तो उसी फॉर्मेट में स्टोर होंगे, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इमटेरियल, मतलब C++, जावा, पाइथन, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करो, फ्लोट नंबर उसी तरीके से स्टोर होगा एंड द नेम ऑफ द फॉर्मेट इज, ध्यान से देखना है, IEEE 754 स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं उसको? IEEE 754 स्टैंडर्ड। एंड इसमें नंबर कैसे स्टोर होता है? प्लीज ऑब्जर्व। सो नंबर इज गेटिंग स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इंडिकेट साइन। ये जो साइन है वो इस नंबर का साइन है, राइट। एंड इफ दिस साइन बिट इज 0 नंबर इज पॉजिटिव एंड इफ दिस साइन बिट इज 1 नंबर इज नेगेटिव, राइट। एंड इस एक्सपोनेंट के साइन को केयर करने के लिए दे आर यूजिंग वन मोर कंपोनेंट नोन एज बायस्ड एक्सपोनेंट, राइट। अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट इज बायस्ड एंड फिर बायस वैल्यू के साथ उस एक्सपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
जब आप आगे बढ़ोगे आपके कोर्स में तो you will come across computer organization, digital electronics, microprocessor and operating system. ये 4 सब्जेक्ट्स के अंदर you could be able to identify the very specific equations against IEEE 754 standards. तो उस टाइम पे आप उसको एक्सप्लोर करोगे, राइट? अभी के लिए स्कोप में आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू द मच डिटेलिंग्स अबाउट बायस एक्सपोनेंट, पर बायस एक्सपोनेंट इज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट? साइन ऑफ द एक्सपोनेंट, एंड बाकी बचा हुआ एंटिटी that is represented mantissa of the number, mantissa जो डॉट के बाद आएगा जो पार्ट बाइनरी के अंदर, that is represented as mantissa, right? So अभी ये IEEE 754 स्टैंडर्ड इज प्रोवाइडिंग 3 स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, एंड उन फॉर्मेट्स के नाम है, यहां पे लिखता हूं, सिंगल प्रेसिजन, डबल प्रेसिजन एंड extended precision, extended precision, right? So single precision है 32 बिट का। ना थोड़ा कैलकुलेशन का जरूरत है। 32 बिट मीन्स हाउ मेनी बाइट्स? 8 बिट मीन्स 1 बाइट, तो 32 बिट्स मीन्स 4 बाइट्स। सो ये सिंगल प्रेसिजन के लिए चाहिए 32 बिट, डबल प्रेसिजन इसका डबल है 64 बिट, बट एक्सटेंडेड प्रेसिजन इज नॉट डबल ऑफ दैट, राइट? जनरली हम लोग सोचते हैं सिंगल का डबल होगा 64 एंड फिर एक्सटेंडेड प्रेसिजन होगा 128, पर वो ऐसा नहीं है। यहां पे एक्सटेंडेड प्रेसिजन इज इन नीड ऑफ 80 बिट्स। कितने बिट्स? 80 बिट्स। एंड ये तीनों फॉर्मेट्स आर मैप्ड बाय डेनिस रिची इनटू द 3 फ्लोट के सब टाइप्स, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। डबल प्रेसिजन की वजह से यहां पे कीवर्ड यूज किया गया डबल। सो फ्लोट के लिए सी में यूज होंगे 4 बाइट्स, डबल के लिए यूज होंगे 8 बाइट्स, एंड 80 बिट्स डिवाइडेड बाय 8 मींस लॉन्ग डबल के लिए यूज होंगे 10 बाइट्स, राइट? सो दिस इज व्हाट द बेसिक चार्ट अबाउट प्राइमरी डेटा टाइप, जहां पे 3 मेजर सब टाइप्स, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। कैरेक्टर के अंडर एक सब टाइप कैर, इंटीजर के 3, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, फ्लोट के 3, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज ASCII, इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन इज 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम, फ्लोट का रिप्रेजेंटेशन इज IEEE 754 स्टैंडर्ड। कैरेक्टर इज इन नीड ऑफ 1 बाइट, शॉर्ट इज 2 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, 4 बाइट वैरी होगा, लॉन्ग इज 4 बाइट, फ्लोट इज 4 बाइट, डबल इज 8 बाइट, एंड लॉन्ग डबल थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा वियर्ड है। मतलब इसमें 2 कीवर्ड यूज हुए, एक लॉन्ग जो इंटीजर से बिलोंग करता है, एक डबल जो फ्लोट से बिलोंग, उनका मिक्सचर करके लॉन्ग डबल डेटा टाइप बना है। एंड ये 2 किसी फॉर्म में नहीं है, राइट? सो देखो 4, 8, 2, दीज आर ऑल 2 सम फॉर्म, तो ये आता है, उसका साइज भी थोड़ा सा वियर्ड है, राइट? ओके, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। इसका प्रूफ मैं इसी सेशन में इसके बाद देने वाला हूं, राइट? सो नाउ ये हुए 7 subtypes about what? Primary data type. I hope you must have enjoyed ASCII representation, 2's complement and IEEE 754 standards. Now the thing is like, डेनिस रिची ने प्रोग्रामर को और एक फैसिलिटी दिया। अगर आपको किसी चीज को कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो यू सपोज टू यूज कैरेक्टर का फॉर्मेट। अगर आपको किसी चीज को इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है तो इंटीजर का फॉर्मेट, एंड फ्लोट में रिप्रेजेंट करना है तो फ्लोट का फॉर्मेट। आपको ये प्रोग्रामिंग में बताना पड़ेगा, एंड इसीलिए डेनिस रिची हैज गिवन अस अ वेरी जेन्युइन एंटिटी नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मेट स्पेसिफायर। किसी चीज का फॉर्मेट अगर हमको स्पेसिफाई करना है, उसके लिए जो चीजें यूज होंगे वी विल कॉल इट एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड, एंड दैट इज %C। %C, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो वी आर इन नीड ऑफ फॉर्मेट नोन एज %D। D फॉर डिजिट्स, D फॉर डेसिमल, राइट? ध्यान से देखना है, इंटीजर के लिए %D एंड फ्लोट के लिए वी यूज %F। फ्लोट के लिए वी यूज %F। ये लोअर केस का F है। लेट मी मेक द चेंजेस। हाँ, दिस इज लोअर केस वाला F, राइट?
सो कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए %c, इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, राइट। और एक एडिशन कर दिया मैंने इस टेबल में। नाउ द थिंग इज लाइक कैरेक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं बिकॉज कैर इज द ओनली सब टाइप, बट व्हाट अबाउट इंटीजर की 3 अलग अलग सब टाइप्स में सारे टाइप्स में %d यूज होगा क्या, तो उसके बारे में सोचते हैं, राइट। अगर अपने पास शॉर्ट वैल्यू है तो इट इज यूजिंग %d, इंटीजर अगर है तो इट इज आल्सो यूजिंग %d, एंड लॉन्ग अगर है तो इट इज यूजिंग %ld, राइट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत लोग इंटरव्यू में या वाइवा में ये जवाब देते हैं एलडी इज लॉन्ग डबल। नो, ये इंटीजर का सब टाइप होने की वजह से किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है, तो डी का एग्जिस्टेंस जरूरी है, इसीलिए यहां पे आया %ld। अभी फ्लोट के बारे में, हर सब टाइप में %f का जरूरी है, राइट। सो फ्लोट में दिस इज %f, डबल के लिए %lf, लोअर केस LF, एंड लॉन्ग डबल के लिए ये यूज करता है अपर केस L एंड F। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, राइट। सो वी गॉट द 7 डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर 7 डेटा टाइप्स, राइट। पर इनको हम लोग बहुत ध्यान से ऐसे इजीली याद कर सकते हैं। कैरेक्टर के लिए %c, इंटीजर के हर सब टाइप में %d होना जरूरी है, फ्लोट के हर सब टाइप में %f होना जरूरी है। Now, let me show you the confirmation about the sizes of this data types. Sizes of this data type, right? तो उसको कोड से कंफर्म करेंगे एंड फिर इस चार्ट को यहां तक मैं इस सेशन में करने वाला हूं बिकॉज दिस इज जस्ट 80% अबाउट द एंटायर चार्ट। पर इसको पहले कंफर्म करते हैं and the next video में we'll come up with the 100% entities by looking into the life cycle of variables and the data types के range as well as corresponding sizes, right। तो अभी के लिए ये जो 80% चार्ट बना है इसको कंफर्म करते हैं with the help of a C program। So please observe। So let's see, like with the help of this, already we discussed what this format is and हम लोगों ने form.c एक फाइल बना लिया है, right। उसको ही सेव एज करेंगे and I'll go with c demo, let us say 3.c, right। and यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, let me highlight this। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, let us say that character var, right। इसका रीडिंग देखो ध्यान से, बाद में वेरिएबल के लाइफ साइकिल में ये रीडिंग हम लोग करने ही वाले हैं। सो var इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप char एंड मुझे अभी इनका साइजेस को प्रिंट करके देखना है। var इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप char, तो कैरेक्टर्स का साइजेस ऑलरेडी वी डिस्कस दैट इट्स अ 1 बाइट, तो मुझे ये कंफर्मेशन करना है एंड इसके लिए डेनिस रिची हैज गिवन अस वन मोर न्यू कीवर्ड, जो कीवर्ड का नाम है साइज ऑफ, राइट। तो ये साइजेस हमको देखने हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट, मतलब 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट्स, समथिंग लाइक दैट। सो ये 1 2 4 8 ये क्या है, डिजिट्स है। तो इनको प्रिंट करने के लिए हमको चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एज %d। ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। एंड यहां पे मैं कर रहा हूं प्रिंट एफ एंड मैं कर रहा हूं यहां पे साइज इज, हाँ मुझे चाहिए डिजिट्स में एंड किसका साइज चाहिए, इस वैर का, जो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। सो मैं ऐसे लिखूंगा साइज ऑफ वैर, राइट। एंड देन से देखना है, कंपाइल करता हूं, कंपाइलर इज हैप्पी, पहले सेव करेंगे, कंपाइलर इज हैप्पी एंड रन करते हैं, तो वी कुड बी एबल टू सी दैट साइज ऑफ कैरेक्टर इज व्हाट 1 बाइट। तो ये कंफर्मेशन हुआ टेबल का। सो टेबल में जो कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज लिखा है वो कंफर्म हुआ इज इक्वल टू व्हाट 1 बाइट। अभी नेक्स्ट टू दैट, हाँ यहां पे चेंज करेंगे, कैर की जगह पे आई विल गो विथ नाउ शॉर्ट, राइट। जस्ट नाउ वी फिनिश द टेबल। शॉर्ट का क्या साइज है, हाँ 2 बाइट्स, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। शॉर्ट is of 2 bytes. Please see the confirmation,
राइट। अभी शॉर्ट के जगह पे नेक्स्ट डेटा टाइप आई एम यूजिंग इंट। अभी वैर इन टाइप का हुआ तो इंट इन टर्बो सी इज गोइंग विद 2 बाइट्स। अभी लॉन्ग के लिए काम करेंगे। लॉन्ग, हाँ लॉन्ग इज 4 बाइट, ऑब्जर्व करिए, राइट। फ्लोट, फ्लोट के लिए फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट, चेक करते हैं, फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट्स। हाँ उसके बाद डबल करते हैं इसको, एंड डबल इज ऑफ 8 बाइट, गुड। एंड फिर और एक लास्ट बचा है, दैट इज लॉन्ग डबल, एंड लॉन्ग डबल इज 10 बाइट्स। प्लीज सी द साइजेस का प्रूफ, राइट। So character takes 1 byte, short is 2 bytes, integer 2 byte, long 4 byte, float 4, double 8 and long double थोड़ा सा weird है, that is 10 bytes। and कौन से कीवर्ड ने हमको हेल्प किया? तो साइज ऑफ नाम के कीवर्ड ने हमको हेल्प किया टू आइडेंटिफाई द साइजेस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट। तो आई होप कि ये जो चार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चार्ट में जो अभी तक लिखा है, that everything you understood, right? While watching this video, I hope you are also taking down the notes, so that is going to help you a lot, right? तो ये चार्ट को बनाना है जहां पे while drawing this you could be able to get fixed into your memory कि ये चार्ट में क्या क्या internal detailings है। फिर भी मैं कहता हूं कि ये चार्ट अभी तक 80% ही कंप्लीट हुआ है। 20% हम लोग डिस्कशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द वेरिएबल एंड हाँ इनका रेंज ऑफ द डेटा टाइप्स, एंड तब जाके ये 100% कंप्लीट होगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टूड प्राइमरी डेटा टाइप, देयर सब टाइप्स, देयर रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स एंड द प्रूफ विथ रिस्पेक्ट टू इट। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।